Twin Melodies, A Symphony of Hearts. Shruti lived in a house filled with the echoes of ancient ragas. Her violin was her best friend, but she didn't just play the classical notes her father taught her. She loved to weave them into modern, vibrant rhythms. श्रुति एक ऐसे घर में रहती थी जहां प्राचीन रागों की गूंज सुनाई देती थी। उसका वायलिन उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन वो केवल अपने पिता द्वारा सिखाए गए शास्त्रीय सुर ही नहीं बजाती थी। उसे उन सुरों को आधुनिक और जीवंत ताल में पिरोना बहुत पसंद था। Every afternoon, the house came alive. Iqbal arrived with his silver flute, and Avinash brought his heavy wooden tabla. Together they explored the bridge between the east and the west, creating a sound that felt like home and adventure all at once. हर दोपहर घर जीवंत हो उठता था। इकबाल अपनी चांदी की बांसुरी लेकर आता था और अविनाश अपना भारी लकड़ी का तबला। साथ मिलकर वे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु की खोज करते थे, जिससे एक ऐसी ध्वनि निकलती थी जो एक साथ घर और रोमांच जैसा एहसास कराती थी। Then there was Peter. He sat at his keyboard, adding soft chords and electronic textures that made Shruti's violin soar. "This is it," Peter would grin. "This is the sound of our generation." फिर पीटर आता था। वो अपने कीबोर्ड पर बैठता था, कोमल स्वर और इलेक्ट्रॉनिक बनावट जोड़ता था, जिससे श्रुति का वायलिन और भी निखर उठता था। यही तो है, पीटर मुस्कुराते हुए कहता, ये हमारी पीढ़ी की आवाज़ है। But the harmony ended at the dinner table. Her father, Nabin Sharma, was a master of the classical violin. To him, music was a sacred tradition that should never be altered. He watched Shruti with eyes that held years of strict discipline. लेकिन ये तालमेल रात के खाने की मेज़ पर ख़त्म हो जाता था। उनके पिता, नबीन शर्मा, शास्त्रीय वायलिन के उस्ताद थे। उनके लिए संगीत एक पवित्र परंपरा थी, जिसे कभी बदला नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने श्रुति को ऐसी आंखों से देखा जिनमें बरसों का सख्त अनुशासन था। Fusion is confusion, Shruti, Nabin said firmly, his voice like a low-pitched string. Our music is pure. By mixing it with these Western sounds, you lose the soul of the raga. I forbid you from playing in that concert. फ्यूजन सिर्फ भ्रम है, श्रुति, नबीन ने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज़ एक गहरे सुर वाली तार की तरह थी। हमारा संगीत शुद्ध है। इसे इन पश्चिमी ध्वनियों के साथ मिलाकर तुम राग की आत्मा को खो देती हो। मैं तुम्हें उस संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन करने से मना करता हूँ। Shruti ran to her room, her heart heavy. She felt torn between the music she loved and the father she respected. How could she explain that the fusion didn't destroy the raga? It made it breathe in a new way. श्रुति भारी मन से अपने कमरे की ओर भागी। वो उस संगीत जिसे वो प्यार करती थी और उस पिता जिनका वो सम्मान करती थी के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थी। वो कैसे समझा सकती थी कि फ्यूजन ने राग को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे एक नए तरीके से सांस लेने का मौका दिया? The next day, the friends gathered for one last practice. They played quietly, thinking it was their final time together. Iqbal played a haunting melody, while Peter's keyboard provided a gentle, rhythmic pulse. अगले दिन दोस्त एक आखिरी अभ्यास के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने चुपचाप बजाया, ये सोचकर कि ये उनका साथ में आखिरी समय था। इकबाल ने एक यादगार धुन बजाई, जबकि पीटर के कीबोर्ड ने एक कोमल लयबद्ध कंपन प्रदान किया। Outside the door, Nabin Sharma stood still. He had intended to stop them, but the music caught his breath. He heard the purity of the Raga Yaman. Within the blend, it was soulful, respectful, and incredibly beautiful. दरवाजे के बाहर नबीन शर्मा स्थिर खड़े थे। उनका इरादा उन्हें रोकने का था, लेकिन संगीत ने उनकी सांसें थाम लीं। उन्होंने उस मिश्रण के भीतर राग यमन की शुद्धता सुनी। यह भावपूर्ण, सम्मानजनक और अविश्वसनीय रूप से सुंदर था। Nabin entered the room as the music faded. He looked at Shruti and sighed.
My own father told me the same things when I wanted to change my fingering style years ago, he admitted. I was wrong. The soul is still there. जैसे ही संगीत फीका पड़ा, नबीन कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने श्रुति की ओर देखा और आह भरी। जब मैं सालों पहले अपनी उंगलियों की शैली बदलना चाहता था, तो मेरे पिता ने भी मुझसे यही बातें कही थीं। उन्होंने स्वीकार किया। मैं गलत था। संगीत की आत्मा अभी भी वहीं है। Go to your concert, Shruti, Nabeen smiled, handing her the violin bow. Take our traditions and give them wings. Shruti hugged her father, knowing that their melodies were finally in harmony. अपने संगीत कार्यक्रम में जाओ, श्रुति। नबीन मुस्कुराए और उसे वायलिन की कमानी थमा दी। हमारी परंपराओं को लो और उन्हें पंख दो। श्रुति ने अपने पिता को गले लगा लिया, ये जानते हुए कि उनकी धुनें आखिरकार तालमेल में थीं।